गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द योर सेकेंड ईयर सिलेबस ऑफ द फिजिक्स। व्हाट इज द सेम योर फिजिक्स? योर लाइफ इज फिजिक्स, एवरी कॉन्सेप्ट डिपेंडेड ऑन योर फिजिक्स। फिजिक्स is the a better concept as well as you can say that nature and natural phenomena is a part of physics, and physics is the dependent that you have studied already. MEQR, this is the my concept. MEQR, ME minded expert, QR. If you don't think, M for is the defined as mechanical, E for electrostatics, Q for quantum, and R for relative. This the whole step is the dependent at your physics. Okay. Now, which is your secondary two syllabus you belong to? What? Electrostatics. I'm going to the about of your electrostatics. Electrostatics is dependent at what? Charge. What the charge? Then your concept is charge. Yes, of course charge. And how many type of the charge? And how to can we can say this is the charge? So simple. Let us. If you suppose here is body and here is animal body. This body is belong to that your positive, and this body belong to your negative. When you simply, if you basic example in your ear, and if you have the pen as something that rubber and a part of the paper, that means attraction. What? Attraction. There means unlike symbol, unlike plus minus, if you suppose here minus and here plus, there is also attraction. Oh, attraction. Yeah, this is the attraction. So attraction. And if the here plus plus oblique minus minus, there means repulsion. Okay. Thus we can say that your charge according to your formula, which is the when the two body always rub between, that means which is the phenomena is called charge, and by according to your mathematical concept, which is your current and timing is the product is known as charge. Simple. Current and timing. When you product, we can say that this is your charge. Okay, charge. When this is called attraction, unlike, and when the like is called repulsion. Okay, this is your repulsion. Simple sir. This is your concept is the attraction and repulsion. That means if you suppose the basic example, you have the cat stick, clock, number, and one by one when you rub, that means attraction. There means there is the charge. That means there is charge. Okay. Then simply charge is the denoted by Q, and when you this body have the what when you rub I into T. I means current passing, and with the taking time is called charge. Okay, Q equal to N is also, and Q equal to IT. Okay, this is the charge. This charge is the defined number of electron to that quantitism. Law of quantitism, conversion of quantitism. This is the defined. So, what is the unit of this? Unit, this unit Q equal to I the ampere, and time is the second, and ampere second is known as coulomb. What? Coulomb.
कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। चलो गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये रहेगा, तो आपको देखना रहेगा क्या क्या देखना रहेगा कि फिजिक्स में जो आपका टोटल मार्क होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे और 70 नंबर के लिए आप जो है स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें 70 नंबर आपको लाना रहेगा। आई 70 यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस 70 पे रहेगा। 30 आप प्रैक्टिकल जब करते हो तो स्कूल के द्वारा आपके सब कुछ देखा जाता है, नेचर देखा जाता है, आपका करेक्टर देखा जाता है, किस तरह से बोलते हैं, बिहेवियर देखा जाता है, कैसे बात करते हैं, कैसे अपना क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन पाते हैं, उससे संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है 30 नंबर आपको दिया जाता है। ओरल होता है आपका, प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा, उस पर बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखना चाहिए, ठीक है। तो सब पे दिखाया जाता है, तो 30 नंबर उसको निकल सकता है। तो फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग का पहला जो टॉपिक है वो आएगा फिजिक्स वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, भौतिक विज्ञान या भौतिक दुनिया, दुनिया का और या जगत का अलग। फिजिकल वर्ल्ड ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें मुझे बताया गया कि हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें पढ़ने से क्या लाभ होता है। ये पूरे विज्ञान को, जो विज्ञान से भौतिक विज्ञान से संबंधित इन सभी को इसमें रखा गया है। तो इसको ये लोग नहीं लिया जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको ये देखा जाएगा जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में मैं एक मामला आप लोग को बताता हूँ, उसी के बेस पे रखा गया है। इसमें खुद रखा हूँ माइंडेड एक्सपर्ट QR। यम से इस चीज में पढ़ोगे मैकेनिकल फिजिक्स हो जाएगा। ई से पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक के विषय में पढ़ेंगे। क्यों से क्या होगा, क्वांटम होता है, क्वांटम थ्योरी ये भी फिजिक्स में आता है। आर से रिलेटिव फिजिक्स हो जाएगा। इससे ये चीज पढ़ेंगे। ये 5 स्टेप मैं दिया हूँ, ठीक है। इसी में पूरे फिजिक्स को समझना है। आप चाहे क्लास फर्स्ट ईयर में रहिए, सेकेंड ईयर रहिए, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब क्रॉस कर देते हैं, BSc में आते हैं, MSc में आते हैं, अदरवाइज आप ये इंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी जगह टेक्निकल में भी नॉन टेक्निकल में यही 5 स्टेप को जो फिजिक्स की दुनिया पर रखा गया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्वांटम थ्योरी एंड रिलेटिव फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैकेनिकल में यही चीज़ बताया जाएगा जो न्यूटन ने बताया। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, फोर्स के विषय में, बल के विषय में, गुरुत्वाकर्षण के विषय में, गति के विषय में, प्रकाश के विषय में, वही सब चीज़ें जो इसमें देखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी चुंबक से रिलेटेड, चुंबक का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ेंगे। क्वांटम थ्योरी में क्या होगा, क्वांटम थ्योरी में ये हम ये सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को यदि आप समझना चाहते हैं तो बेसिकली चाहे आप वह अर्थ से लेके किसी अन्य प्लानट तक जाते हैं, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे जो है देखते हैं, उसके वेव क्या होते हैं, तरंगे क्या होते हैं, तरंग से रिलेटेड कितने फार्मूले कितने क्रिएट किए जाते हैं, इन सब का बेसिकली आप डिटेल इसमें पढ़ेंगे। रिलेटिव फिजिक्स में ये देखा जाए कि रिलेटिव फिजिक्स में जो फंक्शनल चीज़ें होती हैं उनको बारीकियों से कैसे आप समझते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बस ये पूछेगा नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए आप लोग बता दे रहा हूँ कि आप इसमें ही पढ़ोगे, ठीक है। भौतिक दुनिया या जगत में
फिजिकल वर्ल्ड में आप ये देखोगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्वांटम थ्योरी, रिलेटिव फिजिक्स। अब यहाँ पर जो होता है इसमें आप थोड़ा सा एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जैसे साइंस के कई लोग जो है हिंदी में या इंग्लिश में पूछते हैं डिफाइन करने के लिए कि विज्ञान क्या है। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो सिंपल सा बोले तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत है सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं तो आप बताते हो, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है, स्पेस विज्ञान हो गया मतलब अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, धरती से रिलेटेड हो गया जिसे आप भूगर्भ विज्ञान कहते हो। तो विज्ञान के कई ब्रांचेस हो गए, तो विज्ञान की शाखाएँ बहुत से जाते होते हैं, ठीक है। तो आप जब ऐसे में पढ़ोगे तो साइंस को एक तरह से क्या कहा गया है, साइंस को यदि आप पढ़े इंग्लिश में समझो तो साइंस बताया गया है साइंस इज द ब्रांच ऑफ दोज पार्ट, साइंस इज द ब्रांच ऑफ दोज पार्ट which is nature and नेचुरल फिनोमेना। जो नेचुरल फिनोमेना होता है उसी को हम साइंस कर देते हैं, ठीक है, या फिजिक्स भी बोल सकते हो। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड साइंस। दो वर्डों में बोलना रहे कि विज्ञान है क्या, तो नेचर एंड नेचर फिनोमेना। आप विज्ञान को इस तरह से फिजिक्स को आप समझ सकते हो। नेचर मीन्स क्या था, प्रकृति, मतलब प्रकृति की जो है। आप प्रकृति क्या होता है, एक तरह से माँ, हाँ एक तरह से माँ भी कहते हैं ना, जिसमें मतलब धरती माता, हाँ ये वन विभाग हो गया तो जैसे जंगल वगल में जंगल झगड़ा वाली ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो इसका सेंस क्या है, थोड़ा आप बेसिकली में जाओ थोड़ा ऑड लगेगा समझने में, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जो फिजिक्स है, जो साइंस, उसको पढ़ने के लिए जो है हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है जो रिलेटिव, जो जन्म देता हो। हर किसी को तो माँ क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है, उसका पालन पोषण सिखाती है। तो उन सब चीज़ों को बेसिकली रूप से अध्ययन करना, नेचर जो आप नेचर है, अभी भी से मान लो नेचर में क्या प्लानेट हो गया, ग्रह हो गया, ग्रह हो गया ना, धरती ग्रह है, चंद्रमा है, उपग्रह में आ गया, और ये लाल ग्रह हो गया, मार्स ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, ये सब दोनों इंग्लिश से है, जुपिटर हो गया। तो जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह है ना, पहले 9 थे लेकिन प्लूटो बाहर कर दिया गया। ये जितने ग्रह हैं ये क्या प्रकृति है ना, नेचर है, नेचर ने इसको बनाया है। ऐसा नहीं है कोई आदमी जो बना दिया, रॉकेट आदमी बनाया, मिसाइल आदमी बनाया, लेकिन नेचर ने इन सब का निर्माण किया ना, बनाया है। तो वही चीज़ बताएगा कि नेचर और नेचर फिनोमेना, प्रकृति में क्या घटना घटित हो रही है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना हमारा साइंस का एक पार्ट होता है, जिसमें फिजिक्स हमारा इन्वॉल्व होता है। ऐसे में ठीक है, तो ये जो है बेसिकली होता है। तो साइंस को एक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया कि साइंस को यदि हम जानना चाहते हैं तो एक साइंटिस्टिया वर्ड से लिया, साइंटिस्टिया का सेंस होता है जिसमें हम लोग ये जानते हैं टू नो, ग्रीक वर्ड के साथ चला जाता है। ग्रीक वर्ड में हम समझेंगे, ग्रीक वर्ड में ये बताया जाता है, ग्रीक वर्ड में टू नो मीन्स होता है जानना या इच्छुक होना। मतलब नहीं था हम लोग कोई चीज़ हम गया, कैसे आगे पहुंच गया मंगल ग्रह पे, कैसे चंद्रमा पहुंच गया, कैसे आदमी जो है अंतरिक्ष में रह रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये समझ मिलता है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे आएगा। साइंटिस्टिका वर्ड इज द डिफाइंड टू नो, ग्रीक वर्ड से है, इसका अर्थ होता है टू नो, जानना, जानने से पता आता है। ऐसा समझे, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक चीज और भी होता है ग्रीक वर्ड में, टू नो विद नेचर। नेचर का सेंस क्या होता है, प्रकृति होता है। तो फुल्ली कॉन्सेप्ट यही बताया गया है फिजिकल वर्ड में कि आप जो है साइंस के भागों को किस तरह समझते हो, कैसे जानते हो, कहाँ इसका उपयोग होता है, टेक्निकल क्षेत्र में और नॉन टेक्निकल क्षेत्र में। लेकिन फिजिक्स है तो टोटल टेक्निकल क्षेत्र रहेगा, टोटल टेक्निकल क्षेत्र ही रहेगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका आइए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ईरा, ट्रूटी, ये आपका यहाँ से आना शुरू हो जाता है और आपके इस चैप्टर से आपके पेपर में
1 से 4 नंबर के 20 के क्वेश्चन आते रहते हैं। त्रुटि है क्या? त्रुटि को हम कैसे समझते हैं कि त्रुटि क्या अपने जीवन में मत बताओ, त्रुटि जीवन में क्या क्या उपयोग में आता है। हम लोग बोलते हैं तो गलती हो जाता है तो नहीं कहते हैं अरे त्रुटि हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा। कभी सम्मेलन उम्मेलन होता है, ऐसा होता है कि बोलने तो वही कोई खराब करता है, अब सुने होंगे कि अपना बड़ा भाई समझ के, अपना बड़ा जो है छोटा भाई समझ के, छोटा लगता माफ कीजिएगा। तो त्रुटि का अर्थ ही क्या समझाता है कि गलतियाँ ईरा, लेकिन वो गलतियाँ क्या मतलब क्षमा की तरह हो, मतलब उसको क्षमा किया जा सकता है। अब नहीं कि बड़ा सा गलती कर दीजिए तो वो जो त्रुटि नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो त्रुटि के विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। त्रुटि है क्या? कोई फिजिकल कॉन्सेप्ट है या कोई ऐसा कोई बॉडी है। आप साइकिल चला रहे होती हो, साइकिल चला रहे होते तो उसमें देखो जो साइकिल होता है ना, उस पहिया का जो है थोड़ा सा मतलब मिस हो, ऐसे ही लाओ तो कहते हैं लोग थोड़ा सा डर है, लेकिन तभी काम चल जाता है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो? त्रुटि कर सकते हो। समाज से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमें देखने मिलता है। ठीक है, मान लीजिए बोलता है कोई तुलतुला बोलता है तो भी एक तरह से उसका एक त्रुटि हो गया, ह्यूमन त्रुटि हो गया। हम कोई चीज़ नापते हैं, तेल नापते हैं, 1 लीटर तेल नापे उसमें थोड़ा सा कम पड़ गया तो वो त्रुटि हो गया, या थोड़ा सा अधिक हो गया, वो क्या हो गया? त्रुटि हो गया। जी की वैल्यू अब जो है 9.8 होता है, जी की रेशियो 9.81। अब आपका ये इतना ना यदि इस तरह आ जाए 9.79 क्या है यहाँ पे 82, तब भी जो ये माना जाएगा सही है, बस थोड़ा बहुत क्या त्रुटि है। आपके पास 100 रुपया हो, 101 रुपया है तब वो सही है, 99 पर है तब वो सही है। ये होगा ना कि भाई आपके पास तो पैसा है ना, तो वो चीजें क्या है, एक तरह से त्रुटि कराएंगी। ठीक है, आप सपोज कीजिए एब्सोल्यूट मिरर में यहाँ पर आता यह डेल्टा A1, तो A मोर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ A1। सेकेंड क्या है आपका? डेल्टा A2, A मोर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ A2। A3, A मोर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ A3। डेल्टा A4, A मोर देन सब्ट्रैक्शन ऑफ A4। 4 ना, तो 4 ही जो है आप जरूरत है। ठीक है, इनका जब निकालेंगे एब्सोल्यूट माध्य निकालेंगे, एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे, तो इन सभी को ऐड कर लीजिए। फर्स्ट क्या हमारा किसी को डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A2 बाय 1 2 3 4। तो यहाँ पे कुछ आप जैसे इनका जो समा आता वो लिख लेंगे। यदि सम आपको नहीं पता है, यहाँ पे इसको माध्यम में आप पूछें, ठीक है, 1/4 लिखिए, सिग्मा लगाइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा A4। ठीक है, और यहाँ पे I इक्वल टू 1, I यही इक्वल होता है, I इक्वल टू ऑफ यन बस। अब यहाँ पे ये यन का पता है, यन यूज करते, यन रहता तो यन यूज करते, I कर लेता, I यूज कर लेते, यन रखा जाता है, ये रहता। क्लियर? इसका भी यदि वैल्यू दे देता, मान लो इसका जो दिया है इसका वैल्यू दे देता तो क्या लिखते हैं? 1/4, जैसे इतना आया 1/4, I इतना का तब वैल्यू या इतना का वैल्यू यदि मान लीजिए 16 है, सपोज कर लीजिए 16। ठीक है, तो यहाँ पे खूब हो जाए 16 कितना था? 4। ठीक है, एब्सोल्यूट पीरियड कितना जाता है? एब्सोल्यूट मीन में ना हो जाता है। कंफर्म? बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इन सब चीज़ों पे बस ये ध्यान रखना चाहिए। ये आई इसके इक्वल हो जाता है, आई लिख लेते हैं, यहाँ दबाए। ठीक है, 5 रहता तो 5 का यूज कर लेते।
फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर में के बाद देखते हैं यहाँ पे, तो सिंपल सा सपोज आप कर सकते हो। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, बस इसमें जो रिलेटिव एरर है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, वी कॉल द परसेंटेज एरर। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे जिसको आप बोलते हो परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को आप इस तरह लिखते हो प्रतिशत त्रुटि। तो इसको कैसे आप डिफाइन करते हो, जो आपका रिलेटिव है, रिलेटिव में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर यहाँ पे जो रिलेटिव क्या है आपका एब्सोल्यूट अपॉन रियल, है ना, रियल वैल्यू। तो बताइए यहाँ पे एब्सोल्यूट अपॉन रियल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या सपोज किया हम लोग का डेल्टा ए बाई ए, राइट। बट इसमें जो होगा आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी कॉल दैट डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। बस सिंपल सा। तो आप प्रतिशत त्रुटि को कैसे बताओगे कि जो निरपेक्ष मान होता है और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है विद इंटू 100 से कर लेते हैं, तो हम कर लेते हैं परसेंटेज एरर करते हैं, राइट। बस इस तरह से सिंपल सा। तो लिख लीजिए निरपेक्ष त्रुटि एवं उसके वास्तविक मान के अनुपात को अनुपात को 100 से गुणज परसेंटेज त्रुटि। देखो, लगाने वाले लगाएंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, या ना पढ़ने वाले वो किसी भी कंडीशन में कर डालो, वो पढ़ने वाले नहीं हैं। तो सिंपल सा यार लॉजिक यही होना चाहिए, ठीक है ना। आपको कुछ करना है तो करोगे बढ़िया से, तभी कुछ कर पाओगे। वी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो भूल गए अपने शादी का डेट में, भूल गए। आप सोचो, मुस्कुरा रहा है, शादी का डेट में भूल गए। एक ऐसा जज्बा होना चाहिए अपने वर्क के प्रति कि यदि हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो क्या देखना, दिन या रात उसको एकदम कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। तो एग्जाम्पल आप लोग को जाता है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टॉपिक को जब तक आप अच्छे तरीके से समझ ना लो तब तो उसको छोड़ो मत, भले से 12 का 2 बन जाता है। ये तब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत ज़्यादा तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, क्योंकि जनसंख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, नो एनीवन कंट्रोल। तो ये चीज़ें हैं, बात ध्यान में रख के आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके, नाउ व्हाट विल डू हियर, आपको क्या समझना है। आपने एरर इन एडिशन पढ़ा, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या है एरर इन डिवाइड में आपको ये समझना है एरर इन डिवीजन, यानी भाग में त्रुटि। इन दिस क्या किया जाएगा, मैं सपोज करता हूँ कोई भी फिजिकल जो है, फिजिकल क्वांटिटी सपोज किया गया था ना, क्या था mn, ठीक, mn। तो यहाँ पे वर्क के बेस, चलो हम इसको सपोज कर लेते हैं P =
एम बाई एल। श्योर। अब इनके जो है लिमिटिंग इरर क्या होंगे, ये P है तो प्लस माइनस डेल्टा P, M है तो प्लस माइनस डेल्टा M, प्लस माइनस डेल्टा कंफर्म इतना हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखना डेल्टा P प्लस माइनस P ऐसे P, फिर यहाँ पे ये है तो डेल्टा M प्लस माइनस आगे लिख देते हैं प्लस माइनस इतना, फिर यहाँ पे M प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर? ठीक। ना P प्लस माइनस इतना, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर बनाना ऊपर जाएगा, जैसे लाव कंपोनेंट में पड़ी होगी ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा, तो यह प्लस माइनस डेल्टा यम, और यहाँ पे यह प्लस माइनस डेल्टा एन पावर माइनस। श्योर? ऐसे कर लिया जाता है ना। देखिए यहाँ से यम कॉमन लेना, यहाँ से यम कॉमन लेना, यम कॉमन लीजिए तो क्या जाएगा, ये वन जाएगा और कॉमन कमी होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो जब कॉमन कमी डिवाइड उसको जब कॉमन लेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा ना डेल्टा एम बाई एम कॉमन। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले रहे थे, जन लोग ये देखो ये इनवर्स में ना, तो ये इनवर्स के साथ बाहर निकलेगा एन पावर माइनस वन, तब में क्या एक ही कर तो वन हो गया, ये प्लस माइनस ये चीज यहाँ पर जैसे ये कॉमन हो यहाँ पे कॉमन खींचने का, जैसे यहाँ पे लिए थे डिवाइड होता है तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा एन बाई और यहाँ पे इनवर्स ऐसे होगा, हाँ इनवर्स होता है ऊपर ये हम एक साथ कर लेंगे यम एन माइनस वन और वन प्लस डेल्टा एम बाई एम एंड इन दिस वन प्लस माइनस डेल्टा एन एन और क्लियर। जिस तरह से यहाँ को आप समझ रहे हो कि यदि कोई ऊपर निगेटिव है नीचे लाएंगे क्या जाएगा पॉजिटिव, यदि यह पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो उसी सेंस में यहाँ पे आपका ऊपर निगेटिव है नीचे लाएंगे क्या जाएगा एम बाई एम और वन प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम। और ये देखिए ये बायोनिमल थ्योरम, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, बायोनिमल थ्योरम के अकॉर्डिंग है दीपक में बोलते हैं बायोनिमल थ्योरम x प्लस ए, एक टॉपिक है नोट में ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग पढ़ते रहे हैं अबाउट ऑफ द एक्सेलरेशन में डेरिवेटिव्स हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, यदि उसमें आपका ये ऐड हो जाए फ्यूज टू एक्सेलरेशन। फ्यूज टू एक्सेलरेशन में सबसे पहले आप एक ड्रा करते हैं फिगर, यहाँ पे एंगुलरिटी था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, इधर भी हमारा इधर भी एंगल थीटा पे रिलीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यह है और दिस इज 1 यूनिट। तो यहाँ हमारा होगा mg एंड mg cos mg cos। तो इसके कंपोनेंट में आपको बताया जाता है कि ये mg cos थीटा है, तो इसके जो और भी फोर्स होते हैं यहाँ पर कोई बॉडी इधर की तरफ फोर्स अपना काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा। तो इन दोनों फोर्स का यदि हम देखें तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे, भाई एक्शन है तो रिएक्शन है, रिएक्शन है तो एक्शन है। तो यहाँ पे क्या है ए एंड दिस इज द जी, तो यह इज द फोर्स डिफाइन, तो यहाँ पे एम ए ऑफ साइन, इसके लिए हम साइन थीटा लेते हैं यह, और यहाँ पर जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक कॉस थीटा हो गया। अब बताइए यहाँ पे इक्वल क्या है, इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे
एम से एम कैंसिल। अब इसका यदि यहाँ पे इक्वल करते हैं तो ए इक्वल टू जी कॉस थीटा अपॉन साइन, तो ए जी साइन अपॉन प्लस का जाता हमारा कॉट होता है। इसका जब टेन का होगी तो टेन इसका अपोजिट बनाओ ऐसे एज वेल। तो ये जो हमारा ए है, ये है, ये हमारा इसके साथ कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। जो कंपोनेंट है हमारा इधर का कंपोनेंट, इधर का कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट चेंज होंगे। जब कंपोनेंट चेंज होंगे यहाँ पर एफ ए आपका एम ए कॉस थीटा एंड एफ जी एम जी कॉस थीटा, दोनों इक्वल लिख चलिए, इक्वल लिख चलिए या डिवाइड कर दीजिए, वही बात होगा। इक्वल लिख चलो तब या डिवाइड कर तो वही बात रहेगा। तो चलिए जैसे यहाँ इक्वल लिख चले थे एफ ए इंटू एफ जी एम ए कॉस थीटा एंड हियर एम जी एम एम यहाँ से कैंसिल, ए इक्वल टू जी आई इसके अपॉन साइन अपॉन क्लास बिलोंग टू दैट तो जी cos थीटा एंड जी tan थीटा, यानी यहाँ पे जब कंपोनेंट हमारे चेंज हो रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ऐसे में हम तभी ये यूज करेंगे। लेकिन जनरली आपको ये समझना है कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि सपोज कीजिए ये इसकी यूनिट है 1 मीटर, ठीक है, इसका ये लेंथ ओनली दे रहा है, यल दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना यह है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा यदि आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करिएगा, ये चाहिए दोनों से कोई लगाएंगे ए जी साइन थीटा अपॉन कॉस, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस। हाँ ठीक, ए इक्वल टू जी, साइन का फॉर्मूला क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर 1, हाइपोटेन्यूज क्या है एल, ठीक। इसका साइन था, आप कास का लिखते हैं, कास कैसे करके कॉस का, कॉस का क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा अननोन है, तो जब बेस अननोन है तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर और बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इन द यल, एल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडी कितना भी 1 स्क्वायर, 1 हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर, इसको इधर रिमूव कीजिए, एल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर, आई स्क्वायर हटाइए तो रूट में, यानी बेस कितना आ गया हमारा एल स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट में एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज यल, कुल कितने अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन, ऐसे टूट जाता है, 1 3 में और 2 4 में हो जाता है, यानी आप चाहते हैं ऐसे कट कर सकते हैं, ये यल कर जाएगा कैसे जी 1/L, ये ऐसे कट जाएगा ना 4 अपॉन ना दिस टाइप 1/L एंड एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, तो देखिए पहला वाला 30 के साथ, दूसरा वाला 4 के साथ आता है, ऐसे लिखते हैं 1/L आई एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 30 आप चाहते हो 3 में काट सकते थे ना, आपके लिए दूसरा चौथा कट कर सकते थे। हाँ, अब पहला तीसरा होता है, पहला तीसरा कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ए इक्वल टू जी, ए इक्वल टू यहाँ कौन होगा जी बन जाए जी अपॉन एल स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पे इसका कर सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसका ए इंटू एल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें बस मोटो ये है कि जो हम प्यूडो है, प्यूडो रेस एक्सेलरेशन में
पीरियड एक्सेलरेशन में आपको ये देखना रहेगा कि जो इसका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस में क्या लेंथ दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, बेस क्या दे रखा है। तो इसके दो कंपोनेंट जो होते हैं आपको बताया गया था कि जब हम कोई बॉडी रखते हैं तो हमारा दो कंपोनेंट काम करता है, एक एम जी कॉस थीटा में और एक एम जी साइन थीटा में काम करता है, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। तो वो दोनों हमारा जब पीरियड एक्सेलरेशन लेते हैं तो पीरियड एक्सेलरेशन इज द सेइंग दैट व्हाट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन इज द ऑलवेज इक्वल। ग्रेविटी का जो फोर्स होगा एक्सेलरेशन का जो फोर्स होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इसी कंडीशन में लगाया क्या एक था एक्सेलरेशन के लिए थे में साइन थीटा एंड दिस यही कंपोनेंट यदि चेंज होता है तो इस तरह से होगा। तो इन्हीं दोनों में यानी हमें मेन तो यही रूल है A इक्वल टू जी टेन थीटा, A इक्वल टू जी टेन थीटा। और कहीं कहीं आपको देखने की इस तरह से मिलेगा, इससे डिवाइड कर दीजिए A बाई जी इक्वल टू टेन थीटा। आया पॉजिटिव इधर ओनली थीटा फाइंड आउट करें कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू ये पॉजिटिव इधर हम पे लेंगे इनवर्स आ जाता है टेन इनवर्स A बाई जी। तो डायरेक्ट एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर इसका जो है एंगल है एक्सेलरेशन के रीजन से यहाँ पे जो हमारा बन रहा है, यहाँ बन रहा है 180 डिग्री मॉर्निंग चल रहा है। और यहाँ पर जो है आपका जी के लिए स्पेशली ये जो आता है यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 डिग्री है। तो देखिए इसके लिए आप क्या रख देंगे आप 180, इसके लिए क्या रख देंगे 3। तो 180 बाई 3 कितना आ जाएगा 60 भाई, ये 180 बाई 3 6 80 यानी 60 आ जाएगा 60। और इस तरह से 10 60 और 10 60 कितना होता है हाँ यहाँ पे तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। नोट लीजिए इस पे क्वेश्चन है। बैठे ना जी खाना। चलो देखिए बताया गया आप लोग के लीडर में कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई यंत्र है, उस यंत्र द्वारा आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, चाहे किसी चीज़ की लेंथ की मेजर करते हैं, चाहे ब्रेथ की मेजर करते हैं। उस मेजर में उस बॉडी का जो मेजर कर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितना एरर आता है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं। सपोज कीजिए हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो यहाँ पर हम सपोज किए y इक्वल टू ए क्यू बी अपॉन सी, ऐसे राइट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना होगा तो ये क्यू इस तरह से दिया हुआ है तो हम ऐसे क्या करेंगे on both side taking log, दोनों साइड में log ले लेते हैं। तो log यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू log a क्यूब b अपॉन द c स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला log m b इसका सेंस इनटू, तो दिस योर फॉर्मूला log m प्लस log ओके आई फॉर्मूला और मिलेगा m बाई m, यहाँ पर हो जाएगा log m माइनस log m। एक और पढ़ लीजिए log m पावर m log, ये तीन फॉर्मूला इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब देखिए पहले इंटू वाला समझते हैं। m इसको m सपोज लीजिए, इसको m सपोज कर लीजिए तो ये m हो जाएगा आया बात c स्क्वायर। तो ये देखिए इस पूरे को आप m समझ लीजिए और इसको m नीचे वाला तो जो अपान होता है वो किसमें चला जाता है, माइनस के साथ में चला जाता है। तो log y इक्वल टू log a क्यूब b
माइनस लॉग सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। यही तो जो नीचे है यहाँ पे लाग गया वैसे लिखे, और जो नीचे होता है ये लाग गया लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नीचे सी स्क्वायर हो गया, क्लियर। नाउ log y इक्वल टू, देखिए ये इंटू वाला हो गया पार्ट, इंटू वाले पार्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे log a क्यूब प्लस log b माइनस log c स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जो पावर होता है वो पावर कहाँ पर ऊपर क्या जाता है, आगे ऊपर क्या जाता है। तो 10 log y इक्वल टू यहाँ पे 3 log a, 3 आगे ऊपर क्या जाएगा और यहाँ जाएगा log b और माइनस log c स्क्वायर, क्लियर। ठीक, आप यहाँ पे आपको बताया गया था आंशिक रूप में, आंशिक जो भिन्न का इक्वेशन होता था, तो भाई यदि कोई log में होता था हम लोग क्या लिखते थे, यदि यहाँ पे log है log b, हाँ, तो इस log को रिमूव करेंगे तो जो है यहाँ ये y है, y लिखेंगे तो यहाँ y डेल्टा y अपन y ये लिखेंगे तो ये तो ये रहेगा, ये v रहेगा तो ये सी लिखेंगे तो सी सी हो जाएगा। और ये भी जो आपको उतर के आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 उतर के आगे आया है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्लियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा y अपन y और यहाँ पे 3 डेल्टा y अपन a और यहाँ पे प्लस डेल्टा b अपन b और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो -2 डेल्टा c अपन c, क्लियर, ठीक है। आप यहाँ क्या करते हैं मैक्सिमम लगाते हैं, मैक्सिमम के लिए लगाते हैं। जब मैक्सिमम के लिए लगाते हैं तो क्या होता है डेल्टा y अपन y इंटू 100 था मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ये ऐसी बात है डेल्टा a अपन a इंटू 100 प्लस लगाओ डेल्टा b अपन b इंटू, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस डेल्टा c अपन c इंटू 2 है तो 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, क्लियर। और जैसे और भी सॉल्व करते हैं, एक चीज और भी जान लीजिएगा, यदि यहाँ पे नेगेटिव हम कुछ रखते हैं, अब आ रहा था तो क्या जाता है, ठीक है, आगे पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा, यानी नेगेटिव जो होता है एब्सोल्यूट जो होते हैं नेगेटिव के साथ यदि है तो वो बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा पॉजिटिव, या निरपेक्ष वैल्यू जिसको हिंदी बोलते हैं, क्लियर निरावत तो हेरक के जो है मार रही हिला दे रही है, नहीं कुछ सवाल लगा रहे हैं।